So the velocity along y is v sin alpha into t. T is the time, plus half acceleration क्या होगा along y बताओ? What is the acceleration along y? माइनस जी। हाँ नहीं माइनस जी नहीं, माइनस जी कॉस थीटा, बिकॉज अभी हमारा y एक्सिस तो ये हो गया है ना, अभी हमारा ये y एक्सिस है, समझ में आ रहा है क्या? जी साइन थीटा। g sin theta is along the plane beta, g sin theta is along the plane. Which value is perpendicular to the plane along this direction, along y? Is g cos theta. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. फिर से बताता हूँ, देखो g vertically downward है, and I have considered this as y axis and this as x axis. This angle is theta. So what is the component of g along this line? It is g cos theta, and the component of g along this line is g sin theta. ये दो चीजें समझ में आ रही हैं क्या? Yes. So what is the acceleration along y axis? G cos theta. G cos theta. Very good. And it is directed along positive y axis or negative y axis? किधर है ये? Negative. Negative. Very good. So minus g cos theta into t square. Now t gets cancelled. So from here what we get is 0 is equals to v sin alpha minus g cos theta है ये by 2 into t. तो यहां से अपने को मिलता है g cos theta t by 2 is equals to v sin alpha. तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी हो गई? v sin alpha 2v sin alpha by g cos theta. This is the t that can be said as time of flight. समझा क्या? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो ये जो प्रोजेक्टाइल है वो 2v sin alpha by g cos theta इतने टाइम के लिए it will be in air. Now tell me what will be the distance traveled along x axis. पहले वाला जो नॉर्मल वाला जो हमने प्रोजेक्टाइल कंसीडर किया था हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ठीक है ना, तो उसमें एक्सेलरेशन केवल इस डायरेक्शन में था, देयर वाज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस. यहाँ पे भी वही है क्या? इज देयर जीरो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. बताओ. No, sir. G sin theta. Yes, there is g sin theta, and this g sin theta is acting along minus x axis. So there is an acceleration here, and the direction of that acceleration is along negative x axis. So the distance traveled along x axis is s is equal to ut plus half at square. So the distance traveled along x axis. Now what is the speed along x? Batao. What is the velocity V along cos x? theta. C cos alpha. U cos alpha. Very good. So it will be u cos alpha into t. T हमको मिल गया है ये कैपिटल T. Let's call this as capital T into t plus half. What is the acceleration along x axis? It is minus of g sin alpha into capital T square into सर एक्सेलरेशन साइन थीटा है ना? Sir, sin theta ना. sorry, you are absolutely correct. Sin theta into capital T square. So find out the value of capital T and put it here. You will get the distance traveled along x axis. That is ये वाले डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ना उसको. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस, यहां से शुरू होकर के जब वो यहाँ पे जा रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट
दिस डिस्टेंस. सो ये आपको s मिल जाएगा ऑफ x. ठीक है. सो प्लीज कॉपी इट डाउन. आई विल गिव यू 2 minutes. You this is y axis and g तो नीचे ही रहेगा. सो g जो एक्सिस हमने बनाया है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं. g cos theta is acting along y and g sin theta is acting along x axis. तो यहाँ पे दोनों एक्सिस के along accelerations होते हैं, whereas in case of a normal projectile there is only one acceleration and that is along y. Okay. अब हम आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 39. So as you can see in question number 39, दोनों एंगल्स उन्होंने 30 डिग्रीज दिया हुआ है. मतलब जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें उन्होंने बोला है कि थीटा इज 30 डिग्री और फिर एक बड़ा बढ़िया उन्होंने एंगल बनाया. ये है दिस इज 30 एंड दिस टोटल उन्होंने 60 डिग्री दिया हुआ है. तो अगर ये 30 है ये 60 है मतलब ये भी 30 डिग्रीज हो गया. तो थीटा की वैल्यू भी 30 डिग्री है और अल्फा की वैल्यू भी 30 डिग्री है. सो जी cos 30 कितना हो गया बताओ. दैट इज जी रूट 3/2 एंड जी sin 30 कितना हो गया. इट विल बी g/2. ये समझ में आया क्या. और वेलोसिटी v है, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है. सो द वेलोसिटी अलोंग x वुड बी v cos 30. दैट इज v रूट 3/2 and the velocity along y would be v sin 30. That is v/2. अब अपने को निकालना है that the distance traveled along y is 0. ओके. क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पे वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है. इंक्लाइंड प्लेन पे ये हमने x एक्सिस लिया, ये y एक्सिस लिया है. दिस इज द y एक्सिस. सो ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है और ऐसे आता है. सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग y इज 0. So s is equal to ut plus half at square. So this is 0. Initial velocity along y is v/2. ये देखिए. So इसको हम लेंगे v/2 into t plus half. Acceleration along y is this, that is g by root 3. Sorry, g root 3/2 into t square. So एक t तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है ना. अभी अपने पास जो इक्वेशन, अच्छा और ये नेगेटिव होगा. नेगेटिव क्यों होगा. क्योंकि इसका डायरेक्शन इज अलोंग नेगेटिव y एक्सिस. सो वी गेट v/2 इज इक्वल्स टू g रूट 3/4 into t. सो द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये जब यहाँ से शुरू होगा और ये घूम करके जब ये यहाँ पे आता है तो वो टाइम हो गया. अभी ये देखो ये 2 कैंसिल आउट होगा, 4 का भी 2 आ गया. सो दिस विल बी 2v by g root 3. This is the time of flight. Now let's read the question what it says. अपने को डिस्टेंस निकालना है. ठीक है ना. in terms of u and t दिया हुआ है. time taken by the projectile to reach from a to b is t. तो अभी उन्होंने ये t को t लेने के लिए बोला है. उस t को उन्होंने t ही लेने के लिए बोला है. ठीक है. तो अपने लिए इजी हो गया. and then what is this distance. The distance traveled along x. I think यही AB है. So this should be equal to the speed along x into t plus half acceleration along x into t square. Okay. तो अभी देखिए what is the speed along x. So this is v cos 30. That is v root 3/2. So this is v root 3/2 into t plus half. What is the acceleration along x. So acceleration along x is g sin theta, that is g/2. बट ये माइनस होगा. माइनस इसलिए होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है. ठीक है ना. इसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है इनटू टी स्क्वायर. सो दिस शुड बी द आंसर. अपने को u और t के फॉर्म में आंसर लेके आना है. तो मतलब g को नेग्लेक्ट करना है. तो अभी इसको जरा सॉल्व करो. 2 मिनट का टाइम देता हूं. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू फाइंड द आंसर. द डायरेक्शन इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो इट इज minus g/2 into t square. ओके. सो ये माइनस बाहर आ गया. देखो
and then it is g t square by 4. अभी क्या जब आंसर देखोगे ना उसमें g नहीं है, आंसर इज ओनली इन टर्म्स ऑफ v and t, तो अपने को यहां से g को रिप्लेस करना पड़ेगा. सो हमारे पास कोई रिलेशन है क्या जो कि g और t को रिलेट करता हो? यस है. कौन सा रिलेशन है? जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग y में कैलकुलेट किया है. बिकॉज अलोंग द प्रोजेक्टाइल inclined plane the distance traveled along y is 0 अगर हमने इस डायरेक्शन को y लिया है तो, और इसको अगर x लिया है तो. ठीक है ना? So distance traveled along y is equal to velocity along y ut plus half at square. This is acceleration along y. So ये 0 हो गया. Now what is the velocity along y? So it is this v sin 30 degree, that is v by 2 into t plus half acceleration along y, that is acceleration due to gravity along y, that is g cos theta. So cos 30 is root 3 by 2. So g root 3 by 2 यहाँ पे आ गया देखो into t square. Now t gets cancelled, और यहाँ पे फिर ये नेगेटिव है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा. सो एक तरफ v by 2 एंड देन g root 3 by 4 आएगा into t. अब ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से अपने को t in terms of g मिल गया. तो मैंने क्या किया, g in terms of t निकाल लिया. And then I put the value in this expression. ये यहाँ पे g की वैल्यू मैंने रख दी, देखो ये. So when you put all of these values, we get this, and then when you solve it, इसके बाद से ये, फिर ये, and then this, and then finally I'm getting the answer vt by root 3. Now let's check if that's one of the options. Yes, it's A. So okay. So circular motion में जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, just quick recap. So उसमें क्या था कि there was a particle which was moving around the circle. This is the center, and ये x axis हो गया और ये y axis है. This is y axis. Let's say from here at an angle theta the radius is r. ये एक पॉइंट लिया. तो अभी हर जगह हम देखते हैं, यहाँ पे भी हम वही देखेंगे कि this angle is theta and this length is r. So this is r cos theta. This is r cos theta and this is r sin theta. Okay. So the coordinate of this point will be, let's call this as point A. The coordinate would be r cos theta and then r sin theta. So the vector r radius would be given as r cos theta I plus r sin theta j. Velocity क्या होगी? Velocity is given by dr by dt. Okay, which is d by dt of r cos theta I plus d by dt of r sin theta j. अब यहाँ पे देखो ये जो r है ना, r is the radius which is constant. Radius is not at all changing. So take the radius out and then you get d by dt of cos theta plus r is constant, so take it out. You get d by dt of sin theta j. Now, if you remember last time what we did was, if y is a function of x, so हम easily dy by dx निकाल सकते हैं, मतलब d of f by dx निकाल सकते हैं. Okay. ये पॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बट अगेन मैं तुमको बता देता हूं. अभी यहाँ पे क्या है कि I have y as a function of theta, जैसे कि let's say it is cos of theta, and I want dy by dt. So dy by dt can be written as
इसको हम d थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, and then now I can find dy by d theta because y is a function of theta, it's not a function of x now, and then d theta by dt. ये याद आ रहा है क्या तुम लोगों को? Yes, sir. We did Yes, this sir. in the last class, yeah, very good. So theta जो हमने जो define किया था ना, theta was angular displacement. This is angular displacement, and then I defined a term omega, that is angular velocity. Angular velocity. This angular velocity is nothing but change in angular displacement by change in time. ठीक है? So this term is omega. This is omega. So this is equals to omega into dy by d theta. तो अब अगर y cos theta है, so this term would be omega. Cos theta का डेरिवेटिव क्या था बताओ जरा? Cos theta का डेरिवेटिव क्या आता है? Anyone? माइनस साइन थीटा, भूल रहे हो? सो दिस इज माइनस ओमेगा साइन थीटा. समझ में आ रहा है क्या? यस सर. या सिमिलरली बताओ, अगर y साइन थीटा हो जाएगा तो क्या होगा? y साइन थीटा है एंड आई वांट टू फाइंड dy by dt. So what will be the answer? Tell me fast. I'll give you 1 minute. Omega cos theta. Omega cos theta. ओमेगा cos theta. हाँ सर. Very good. So dy by dt will be, if I go by this formula, so d theta by dt तो रहेगा ही. सॉरी, हाँ, यस. सो ये ओमेगा हो जाएगा पहले, ओमेगा इंटू डी वाई बाई डी थीटा. तो साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस ऑफ थीटा. सो ये वाली जो टर्म है डी टी कॉस थीटा विल गिव मी आर माइनस ओमेगा साइन थीटा आई प्लस आर ओमेगा cos of theta j. So can you see from here कि r into omega कॉमन आ गया और ब्रैकेट में आ गया माइनस साइन थीटा i प्लस cos थीटा j. अब अगर तुम्हें छोटी सी एक और बात याद होगी जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, तो वो मैंने ये बताया था कि जो सर्कुलर मोशन होता है ना, सर्कल होता है, अगर मैं 1 यूनिट का एक सर्कल बना दूं, okay, if I make a circle of 1 unit and let's say if I take a point and if this angle is theta, so the unit vector along r, let's call that as r cap, the unit vector along radius is cos theta I plus sin theta j. ये बताया था, याद आ रहा है? जिसको कि हमने शायद से ER भी बोला था. And the unit vector which is perpendicular to r, the unit vector which is perpendicular to r is, let's call that as e theta, is minus of sin theta I plus cos theta j. याद आ रहा है क्या? तो ये वही वाला यूनिट वेक्टर है, ये जो है ना, this unit vector is the same, which is r into omega into e theta cap. So अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया बताओ? If I ask you in a circular motion, what is the magnitude of velocity? So magnitude of velocity is nothing but magnitude of r omega into e theta cap.
which is equals to r into omega multiplied by e theta cap. अब e theta cap तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा. So this is r into omega. So the magnitude of velocity is given by this expression. Velocity is equals to r into omega. समझ में आ रहा है क्या? यस सर. नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है. यस सर समझा. पक्का आ रहा है? यस सर. देखो बता देता हूं क्यों 1 होता है ये जो रेडियस वेक्टर है देखोगे तो ये है cos थीटा i प्लस साइन थीटा j. ठीक है ना. और मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1. ये हो गया रेडियस के अलोंग वाला यूनिट वेक्टर. दूसरा वेक्टर था इसके परपेंडिकुलर, ये वाले वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं. टॉकिंग अबाउट दिस वेक्टर. I'm talking about this vector. Okay, so this is minus sin theta I plus cos theta j. इसका भी मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस cos of theta का होल स्क्वायर. That will be nothing but sin square theta plus cos square theta, that is again 1. और मैंने अभी ये तुमको बोला ना कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं. r cap is perpendicular to e theta. तो वेक्टर में हमने सीखा है क्या कि हाउ टू फाइंड वेदर द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट. बताओ कैसे फाइंड आउट करते थे हम? डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. क्या 0 हो जाएगा? वेरी गुड. डॉट प्रोडक्ट. Very good. So if the dot product of two vectors are 0, means the vectors are perpendicular. So r dot e theta dot कर दोगे ना तो वो 0 आ जाएगा. देखो इसके साथ में ये मल्टीप्लाई होगा तो ax into bx, that is minus of sin theta plus ये into ये, that is sin theta into cos theta. देखने से ही लग रहा है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये 0 हो गया. इसका मतलब r इज परपेंडिकुलर टू ई थीटा. यही मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस. ये जो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, एक मिनट रुको. और आप इसको जूम आउट करेंगे क्या? मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं. हाँ सब करता हूं, 2 मिनट रुक जाओ. ई थीटा इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर. सो ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो हमने निकाला है, ये चीज याद रखना. दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू r into omega. And what is the direction of the velocity? It is in this. It is in this direction. If the object is moving along this, then this is the direction of velocity. That is nothing but tangent to the circle. यहां तक मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था. सर वो It is minus g cos phi. इतना समझा? अब इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर ले रहे हैं, एक along x और एक along y. So the velocity component along x is v naught cos theta minus phi, and the velocity along y is v naught sin theta minus phi. This is the velocity along y and this is the velocity along x. तो अभी y के along अगर हम मोशन को कंसिडर करें तो यहां से लेकर के यहां तक आने में what will be the displacement along y? It should be 0. टोटल डिस्प्लेसमेंट में बात कर रहा हूं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, बिकॉज अपने को यही रेंज निकालना है. दिस इज द रेंज दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट. सो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y? बताओ. 0. सबसे पहले यहाँ से जाएगा और फिर फाइनली यहाँ पे आएगा 0. So this should be equal to s is equals to ut plus half at square, which implies 0 is equal to what is velocity along y? What is velocity along y? बोलते जाओ. v naught sin theta minus phi. Very good. It is v naught sine of theta minus phi into t
plus half. What is the acceleration along y? Tell me. Minus G cos phi. Minus G cos phi. Very good. Minus g cos phi into t square. So अभी ये वाली टर्म माइनस है, उसको लेफ्ट साइड पे लेके आ जाओ. So it will be g cos of phi t square by 2 is equal to v naught sin of theta minus phi into t. ये t और ये t गया. So the time period मतलब जब वो यहां से शुरू होगा और यहां से जा करके जब वो यहाँ पे आएगा, the time period is given by 2 v naught sin of theta minus phi divided by g cos phi. This is the total time of flight, that is capital T. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? Yes, sir. Good. Now can I say that the range that is given in the question can be calculated as range is nothing but it is the distance traveled along x is equal to ut plus half at square, where ux is the velocity along x axis and t is the total time of flight, because उतने टाइम तक तो ये हवा में रहा ना, यहाँ से आया और फिर फाइनली वो यहाँ पे गया, तो उतने टाइम तक तो ये हवा में रहा है, वो टाइम ये है. देखिए, समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. Now tell me, what is the velocity along x? It is Cos theta minus phi. v naught cos of theta minus phi into capital T. What is capital T? This is the capital T, that is 2 v naught sin of theta minus phi divided by g cos phi. समझ में आ रहा है? Yes, Plus sir. half. What is the acceleration along x? Acceleration along x is minus of G sin Minus G cos sin phi. minus g sin phi. So this is equal to minus g sin phi into again capital T का whole square. Okay, so that whole square को पहले इसको 2v naught करके लिखते हैं, sin of theta minus phi divided by g cos of phi का whole square. ठीक है ना? अभी देखो, now this whole thing is equal to v naught यहाँ पे है, v naught यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो अपने को ये 2 v naught स्क्वायर तो कॉमन में आ गया. उसके बाद से ये cos है और ये sin है, तो उसको वैसे ही लिख लेते हैं, cos of theta minus phi into sin of theta minus phi, और डिनोमिनेटर में g of cos phi है, वो लिख देंगे. अभी देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इधर नेगेटिव आएगा कॉमन. समझ में आ रहा है क्या? दूसरी चीज, अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 2 है जो कि जिसका स्क्वायर होने वाला, तो ऊपर 4 हो जाएगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है. तो सबसे पहले इसको बाहर लिखता हूं. चलो, g ऑफ साइन फाई है, ये थीटा नहीं है, g ऑफ साइन फाई, और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा और नीचे 2 है, तो अल्टीमेटली ऊपर 2 आने वाला है. समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. वेरी गुड. और ये यहाँ पे जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई. तो जी यहां से गया और ये v naught square. ली तो v नॉट स्क्वायर. अब देखो, ये दो टर्म्स में से कौन कौन सी चीजें कॉमन दिख रही है. सबसे पहले मुझे 2v नॉट स्क्वायर न्यूमरेटर में और साइन थीटा माइनस फाई कॉमन दिख रहा है.
देखो यहाँ से वी नॉट स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, और ये स्क्वायर है तो 1 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो सबसे पहले वो कॉमन लिख दो भाई, 2 वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव। ये न्यूमरेटर में कॉमन आ गया। डिनोमिनेटर में देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, जी कॉस फाइव, जी कॉस फाइव, सो डिवाइडेड बाय जी टाइम्स कॉस ऑफ फाइव। अब ब्रैकेट के अंदर देखते क्या क्या बच रहा है। इसमें तो केवल कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव दिख रहा है, और यहाँ पे माइनस ये पहले वाला टर्म देखो साइन फाइव है, ये बचेगा, और स्क्वायर में से एक बाहर लेके गए तो दूसरा वाला बचेगा। समझ में आया क्या? साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव, एक मिनट, डिवाइडेड बाय कॉस फाइव। ये समझा क्या सबको? Yes, sir. और अन्नो करते का? Yes, sir. वेरी गुड, हो सर। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम में से कितने लोगों को कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। Sir, cos A into cos B plus sin A into sin B. पक्का? Plus नहीं sin minus into- होगा। Sir, minus sin A into sin B. तो ये तुम लोग का हो चुका है क्या? हाँ Yes, sir. minus. Yes, sir. पक्का हो चुका है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ sir. किसने पढ़ा है? Ranjan sir. Ranjan sir. वेरी गुड। सो cos a plus cos b is equal to cos a cos b minus sin a sin b। अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, this is 2v naught square by g cos of phi sin of theta minus phi। यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos of phi, अभी cos of phi को ऊपर लेके जाओ, so cos phi into cos of theta minus phi minus sin phi into sin of theta minus phi। दिख रहा है क्या? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा इसको अच्छे से लिखता हूँ, sin of थीटा माइनस फाइव। अब अगर मेरे पास कोई ऐसा टर्म आ जाए, मान लो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, cos of a प्लस b? Yes, sir. तो ये देखो तो जरा कैसा दिख रहा है तुमको, वैसा कुछ दिख रहा है क्या? cos a cos b माइनस sin a sin b। तो न्यूमरेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? Cos A बताओ। plus B. cos a प्लस b, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ मेरे दोस्तों? Yes, sir. which is nothing but cos of theta, क्योंकि ये प्लस फाइव है और ये माइनस फाइव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. सो दिस इज 2v नॉट स्क्वायर साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय जी कॉस ऑफ फाइव। ये भी एक और कॉस ऑफ फाइव आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो कि जो हमको प्रूफ करना था वो यही था क्या? यस यही था, 2v नॉट स्क्वायर, दिख रहा है क्या? Yes, sir. 2v नॉट स्क्वायर cos थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है?